मैं इन्जॉय कर रही थी इस प्रोसेस को, तो मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि ये मेरा पैशन है, बिकॉज आई वॉज फीलिंग गुड। और ना ही मुझे कोई थकन हो रही थी, ना ही कोई उलझन हो रही थी। रनिंग अ बिजनेस इज़ बाय बीइंग परसिस्टेंट एंड नेवर स्टॉप ट्राइंग समथिंग न्यू, बिकॉज नाउअडेज द बिजनेस मॉडल इज़ रनिंग ओवर इनोवेशन। जितना हम इनोवेशन लाते रहेंगे उतना हमारी चीज़ बेहतर होती जाएगी। आई एम अ CEO ऑफ अ मोरेश ब्रेड, अ डिज़ाइनर क्लोथिंग ब्रांड. A designer clothing brand which deals with ready-to-wear and customized orders. I did my schooling from The City School and my matriculation from Beacon House School System and intermediate from County Cambridge Girls College. Being a pre-medical student, I pursued Lumps University, but due to the less seats, I couldn't make up. So at that time, the political condition of the country was quite unstable, so my parents didn't allow me to move to Karachi. So because I wanted to study BBA from IBA Karachi. So I got admission in University of Sindh PharmD program on merit, and I was the first female of my family to join the government university, as those times were so crucial. I pursued pharmacy as pharmacy had a various subject of my interest. In starting, I faced various challenges, but then I decided to work for other students and creating opportunities for them by being an executive council member of a different societies which were working to empower youth. So I also worked and managed MUNs, various MUNs in Hyderabad. Meanwhile, I was also doing my internships at LNH Karachi and Civil Hospital Hyderabad. Then the time came that I was searching for my job, and luckily I got job as a production officer in private pharmaceutical company. When my contract got ended, I was searching for another job, and then I decided to try something new. And वो time था 2018 का, तो I was searching कि मैं कुछ नया try करूँ। तो डिज़ाइनिंग का मुझे शुरू से ही शौक़ था, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ डिज़ाइन किया जाए और उसे डिस्प्ले किया जाए ऑनलाइन, और फिर चेक करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। जब मैंने डिस्प्ले किया तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स आएगा या नहीं। मैंने विदाउट एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी प्लानिंग बस एक ट्राई किया था, और मुझे फ्यू मंथ्स में ही बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया, और मैं खुद हैरान थी कि ये इतना अच्छा रिस्पॉन्स मैंने जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वो कैसे आया। और लोगों को मेरे डिज़ाइंस, मेरे रेट्स, मेरी क्वालिटी, हर चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई, और सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं इन्जॉय कर रही थी इस प्रोसेस को, तो मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि ये मेरा पैशन है, बिकॉज आई वॉज फीलिंग गुड। और ना ही मुझे कोई थकन हो रही थी, ना ही कोई उलझन हो रही थी। सो माई सेल्स गॉट डबल दैट ईयर. Then in 2020, I got selected from Hyderabad in EYWP as an only female entrepreneur in EYWP IBA 2 years program, which was at IBA Karachi, and that was fully funded. So my dream got fulfilled of studying business from IBA Karachi, and many other opportunities knocked my door. So then my sales got double, and that was the time of कोविड में मेरी सेल्स डबल हो गई, और मुझे बहुत सारे फ़ॉरेन ऑर्डर्स मिले, जिसकी वजह से मेरी बिज़नेस को बहुत ज़्यादा बूम मिला. And alhamdulillah, now my business is of 4 years and I am doing very well. Challenges during business. There were many challenges. As a female, there was the biggest challenge in procurement of the goods, whereas traveling and production phase. As I was a female, I can do it all alone, but my family supported me a lot. And the second challenge was the finances. जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, मेरे पास कोई अच्छी फाइनेंसेस नहीं थी, सिर्फ मेरी अपनी सेविंग्स थी जो मैंने जॉब से जमा की थी, तो उन्हीं को मैंने बिज़नेस में लगाया. और ऐसा होता था कि मेरा जो मोटिव था वो बेसिकली ये था टू प्रोड्यूस अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट इन अ रीज़नेबल प्राइस विद वेरी लेस प्रॉफिट. सो आई वॉज जस्ट प्लेइंग ऑन द रेट्स, और रेट्स जब कम होते हैं तो फिर प्रॉफिट भी कम होता है, और जब प्रॉफिट कम होता है तो फिर रीस्टॉक करने का इशू आ जाता है, और जब रीस्टॉक करने का इशू आता है तो फिर आप अपनी कलेक्शन को मार्केट में मेंटेन करने में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं. तो वो टाइम था कि मुझे रीस्टॉक करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी. मैं सारा अपना जो भी प्रॉफिट होती थी, जो भी अर्निंग होती थी, सब रीस्टॉक करने में लगा देती थी, लेकिन फिर उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचता था.
सो इन स्टार्टिंग आई वॉज डूइंग इट बिकॉज मैं चाहती थी कि मेरा नाम बन जाए, और अगर मैं रेट्स कम रखूँगी तो मेरा नाम ज़रा जल्दी बनेगा और लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे मेरे ब्रांड की तरफ. So I kept that struggle, but that struggle made my name, alhamdulillah. We can only face the challenges while running a business is by being persistent and never stop trying something new. Because nowadays the business model is running over innovation. जितना हम इनोवेशन लाते रहेंगे उतना हमारी चीज़ बेहतर होती जाएगी, और हमें अगर मार्केट में मेकअप करना है तो हमें न्यू से न्यू चीज़ पे ट्राई करना होगा,